دوستو ایران کی 31 صوبوں میں سے ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر میہان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ موجود ہے جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 1330 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں ہوئی۔ شاہ نعمت اللہ کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، اور آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ایران کے علاقے یزد میں گئے، جہاں آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، اور سلطان شہاب الدین دیمی نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کی ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہوں گے جتنا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ پاک چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ منصب پر ان کو فائز کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 850 سال قبل گزرے ہیں۔ آپ نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ ایک قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے، اور اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنے فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں، اور 1000 سال کے عرصہ پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر صغیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک ترتیب سے آپ نے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹریول بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں کہ گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے فارسی اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغلق کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بنا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا بھی ذکر کیا، جبکہ مغل بادشاہ کا ذکر نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہ یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بر صغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر الزماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کر دیے، اور ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعے اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر فرما دیا۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ وہ پیدا ہوگا کی ردیف استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ردیف میں دیکھ رہا ہوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا، اور یوں شیر شاہ سوری نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ بلفظ سچ ثابت ہوا ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا، اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر دوبارہ حکومت کی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوگا، کیونکہ تاریخ میں موجود ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے صدیوں پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا۔
यहाँ तक कि तख्त के असल वारिस यानी अपने बड़े भाई दारा शिकोह को शिकस्त देकर हाथी के पीछे बांधकर घसीटते हुए हजारों मर्दों और औरतों के सामने इसे कत्ल कर दिया। यूं इस जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के बाद सल्तनत मुगलिया का जवाल शुरू हो गया, जिसका जिक्र शाह नेमतुल्लाह वली ने इस वाक़े के रुनमा होने से कई सौ साल कबल किया। इसके बाद शाह साहब दिल्ली के बादशाह नादिर शाह का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो 1739 में हिंदुस्तान पर हमला करेगा, और तारीख में मौजूद है कि नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह करके इसमें खूब खून खराबा किया और सिर्फ 12 घंटे में 1.5 लाख इंसानों को कत्ल कर दिया, जबकि लूट खसूट 2 माह तक जारी रखी। दोस्तों, हैरान कुन हद तक शाह नेमतुल्लाह वली बादशाह बाबर के दौर में सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक का भी जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि इसका नाम नानक होगा, बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे, इस फ़कीर का बाज़ार गर्म होगा, जबकि इसका चर्चा दूर दूर तक होगा। यूं सिख कौम वजूद में आएगी जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की तारीख रकम करेगी, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त देखा गया। इसके बाद के वाक़यात का जिक्र शाह नेमतुल्लाह वली कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि अंग्रेज़ ताजिर बनकर हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। ये वो वक्त होगा जब हुक्मरान ऐशो इशरत में डूब चुके होंगे और जुल्म और सितम के बाज़ार गर्म होंगे। लिहाजा ये अंग्रेज़ ईसाई हिंदुस्तान पर काबिज होकर पूरे 100 साल तक हुकूमत करेंगे। ये वो दौर होगा जब मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी, इन पर जुल्म और सितम और नाइंसाफ़ी के पहाड़ तोड़े जाएंगे। लिहाजा इस जुल्म और सितम के बाद अल्लाह पाक इनकी मदद के लिए असबाब पैदा करना शुरू कर देगा। लिहाजा पहली जंग अजीम का, जो कि 1914 से 1918 तक जारी रही, इसका आगाज़ होगा, जिसको शाह साहब जंग जीम कहकर बयान करते हैं, यानी कि जर्मनों की जंग। लिहाजा ईसाइयों और जर्मनों की जंग होगी, जिसमें जर्मन कौम तबाही और बर्बादी का शिकार होगी और शिकस्त का मुंह देखेगी। इसके बाद दूसरी जंग अजीम, जो कि 21 साल बाद दोबारा जर्मनों और ईसाइयों के दरमियान शुरू होगी, इसका नतीजा शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूँ बयान करते हैं कि अगरचा बे जीम पर यानी कि बरतानिया जर्मनों पर फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, मगर ख़ुद मुआशी तौर पर बेहद कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा बरतानवी अंग्रेज़ हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे, मगर वो जाते जाते इनमें एक जानलेवा झगड़ा छोड़ कर जाएंगे। और ज़ाहिर है यहाँ पर शाह नेमतुल्लाह वली मसला कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कई सौ साल कबल सकूत ढाका की भी पेशनगोई की, जिनमें आप फरमाते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जब हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा तो इसके कुछ अर्सा बाद मुसलमान दलेराना जंग लड़ेंगे, जब दुश्मन मुसलमानों के कल्ब यानी लाहौर पर आ पहुँचेगा, जो कि वाज़े तौर पर 1965 की जंग का जिक्र है। मज़ीद शाह नेमतुल्लाह वली बयान करते हैं कि 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम के गाजी इस खून रेजी के बाद कामयाब हो जाएंगे, मगर दुश्मनों की साजिशों के सबब मुसलमानों के मुल्क को तोड़ दिया जाएगा, जिसमें वाज़े तौर पर सकूत ढाका की तरफ पेशनगोई की गई है। दोस्तों, ये तो थी शाह नेमतुल्लाह वली की माजी की वो पेशनगोइयाँ जो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर हमारा हाल और मुस्तकबिल क्या होगा? शाह साहब इसके बारे में क्या पेशनगोइयाँ करते हैं? अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएँ तो आपकी पेशनगोइयाँ मौजूदा हालात पर कुछ इस तरह से मौजूद हैं कि एक एक लफ्ज़ सच साबित होता दिखाई देता है, और वो पेशनगोइयाँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ भी वाज़े इशारा करती हैं। आप फरमाते हैं कि उस वक्त के बाद ऐसा दौर आएगा कि तुम किसी को अहले हक नहीं देखोगे, यानी एक वक्त आएगा जब झूठे, धोखेबाज और कातिल लोग साहिब इक़्तिदार होंगे। कौम की दौलत, इज़्ज़त और वक़ार के मुहाफ़िज़ होने की बजाय वो सब कुछ लूट लेंगे। लोग चोरों और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। कबीले का सरदार सबसे ज़्यादा करप्ट और बेईमान होगा, मगर फिर भी लोग इस पर भरोसा करेंगे, इसे अपना लीडर तस्लीम करेंगे। जबकि इस दौर में उलमा का ये हाल होगा कि वो बेदीन और बेअमल होंगे, जबकि इनमें मुनाफ़क़त कूट कूट कर भरी होगी। वो अपने फतवों और मनसब को पैसों की खातिर बेच देंगे और इसे अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसका वाज़े सबूत हमें 12 अक्टूबर 2017 जैसे वाक़े पर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से मुतल्लिक कादियानियत सोच का बिल पास करते वक्त उलमा कराम की खामोशी के वक्त देखा गया। इस दौर में ईसाई हुक्मरान होंगे, मगर दर हकीकत इनकी हुकूमत पसे पर्दा यहूदियों के कंट्रोल में होगी। और ये हम आज के दौर में देखते भी हैं, क्योंकि बज़ाहिर आजकल ईसाई हुक्मरान हैं, लेकिन दुनिया के तमाम वसाइलों पर यहूदी लोग काबिज़ हैं और एक साजिश के तहत हमेशा ईसाइयों को इस्तेमाल करते आए हैं। इसके अलावा शाह साहब फरमाते हैं कि इस दौर के अंदर 3 तरह के लोग मौजूद होंगे, जिनमें से एक तबका ऐसा होगा जो आलिम होंगे मगर करप्ट होंगे, दूसरे लोग दाना होंगे लेकिन मुतकब्बिर होंगे, जबकि तीसरी किस्म के लोग फहश और अयानी में मुब्तला होंगे। आप फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद यहाँ वाक़े से क्या मुराद है ये वाज़े नहीं है। लिहाजा इस दौर के अंदर रब करीम अपना फ़ज़ल एक ईमानदार और जुर्रतमंद लीडर की सूरत में पाकिस्तान में ज़ाहिर करेगा,
जो हज़रत अली के शेरों में से एक शेर होगा, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में गैरत और शऊर बेदार करेगा। जब वो नेक हुक्मरान हक़ की आवाज़ बुलंद करेगा तो तुर्की, ईरान इसकी आवाज़ पर लबैक कहकर उठ खड़े होंगे। जैसे कि हालिया दिनों में तुर्की और ईरान का यकजा हो जाना तारीख़ में पहली बार देखा गया है, जो कि बर्मा हादसे के बाद देखा गया। इसके बाद आप फरमाते हैं, हिंदुस्तान में एक शोर उठेगा और सरजमीन हिंद पर एक फसाद बर्पा होगा। इस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम यानी हिंदुस्तानी कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपना कहर और गज़ब नाजिल करेगी, यानी मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान जंग का आगाज़ होगा। ये जंग 6 साल तक जारी रहेगी, जो कि इंसानी तारीख़ के स्याह तरीन दिन होंगे, जबकि इस जंग की बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडा होगा। मिसाल के तौर पर आज इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान पर अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाने, एटमी हथियारों की तरसील और दूसरे झूठे इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने के नापाक अज़ाइम रखता है, इसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाकर इस जंग का आगाज़ किया जाएगा। जबकि इस जंग के दौरान लड़ने वाले फ़ौजियों से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि इनकी मदद के लिए शुमाल मशरिक़ की तरफ से फ़तह हासिल करवाने के लिए मदद आएगी। और अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से बरादराना और नहायत अहमियत के हामिल मफाद पर मबनी है। लिहाजा इन पाकिस्तानी फ़ौजियों को चीन की तरफ से मदद और तामुन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हथियार और दूसरी जंगी टेक्नोलॉजी की सूरत में होगा। ये मदद इतनी ज़्यादा होगी कि मुसलमान मजबूत तरीन हो जाएंगे, हत्ता कि अहले कुफ्र भी इसको देखकर खौफज़दा हो जाएगा। ईरान और मशरिक़ वस्ता भी इमदाद के लिए दीवाना वार निकल आएंगे और जज्बा जहाद से सरशार होकर मुसलमानों के साथ मिलकर काफरों पर कहर साबित होंगे। मुसलमानों का ये अजीम लश्कर अहले कुफ्र को पिसपा करके रख देगा, यहाँ तक कि काफिर जान बचाने के लिए बहाने ढूंढते फिरेंगे, मगर सब कुछ बेसूद साबित होगा। तुर्की, चीन और ईरान हिंदुस्तान को फतह करवाने में पाकिस्तान का साथ देंगे और ज़ाहिर है ये गज़वा हिंद का जिक्र है। इस दौरान सब दुश्मन मारे जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर इसका खात्मा कर दिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा होकर इस्लामी इत्तेहाद की मिसाल कायम करेंगे। दोस्तों, ये जंग कितनी खूनरेज़ होगी, इसका तज़किरा शाह नेमतुल्लाह वली यूँ करते हैं कि दरियाए अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। तीसरी जंग अजीम के मुतालिक भी शाह नेमतुल्लाह वली कुछ यूँ बयान करते हैं कि हिंद की तरह मगरिब की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी, यानी कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम का आगाज़ होगा। इसके बाद शिकस्त खाने वाले जर्मनी और जापान रूस के साथ मिल जाएंगे, यानी उसके साथ इत्तेहाद कायम कर लेंगे। इसके अलावा इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोहलिक यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो देखते ही देखते पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की सलाहियत रखते होंगे। जबकि मुस्तकबिल से मुतल्लिक शाह नेमतुल्लाह वली गज़वा हिंद के 40 साल बाद का जिक्र करते हुए यूँ फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ये बात तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसके बाद अस्फ़हान शहर से दजाल का ज़हूर होगा, जिसमें एक बार फिर फितना और फसाद फिर से सर उठाएंगे। लोग इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, हर तरफ कुफर मुसल्लत नजर आएगा। लिहाजा इस दौर में अल्लाह पाक अपना फजल फिर से नाजिल फरमाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़ाहिर करेगा, जो कि दज्जाल के साथ जंग करेंगे और इसे कत्ल करेंगे। मगर दोस्तों, इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर शाह नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि खामोश हो जा नेमतुल्लाह, रब करीम के राज़ों को ज़ाहिर न कर, और यूँ इसके बाद अपने कसीदा को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह पाक के इन बरगज़ीदा बंदों में से थे जो अल्लाह पाक की कुदरत से रूहानी और वजदानी तौर पर टाइम ट्रैवलिंग कर चुके हैं, यानी वक्त से पहले आने वाले वक्त को देख चुके हैं, और इनकी हर एक पेशन गोई वक्त ने सच साबित कर दिखाई है, जबकि मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ भी ज़रूर सच साबित होंगी। अल्लाह पाक ने शाह साहब को ये फैज़ और इल्म अता किया, क्योंकि जब अल्लाह पाक का कोई बंदा इबादत कर करके इसके बेहद करीब हो जाता है तो अल्लाह पाक इसे ऐसी कुदरत अता फरमाते हैं जो तमाम इंसानों की फ़हम और फरासत से भी बाहर होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।